শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 54 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 4.54 অনওয়ার্ডস। 54 নম্বর শ্লোক। মূল হেতু আগে শ্লোকের কইল আভাস, মূল হেতু আগে শ্লোকের কইল আভাস, এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ। এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ। ভগবানের অবতরণের মুখ্য কারণ বর্ণনা করে একটি শ্লোকে আমি তার আভাস পূর্বে দিয়েছি। এখন আমি সেই শ্লোকের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করব। এখন যে 55 নম্বর শ্লোক কবিরাজ গোস্বামী বলবেন, তাৎপর্য দেখুন। এই শ্লোকটি ছিল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কর্চা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম 14টি শ্লোকের पंचम श्लोक, माने मंगलाचरण का 5 नंबर श्लोक। पहला अध्याय में जाकर, पहला चैप्टर में जाकर अगर 5th श्लोक देखिएगा तो वो यही है। पचपन नंबर श्लोक। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तत् दाव्यं चैक्यमप्तं राधभावदुति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। अनुवाद। राधा कृष्णेर प्रणय भगवानेर लादिनी शक्तिर विकार। श्रीमती राधारानी और श्रीकृष्ण एकात्मा हलेও तारा अनादिकाल থেকে গোলককে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। देखिए, एक आत्मा है लेकिन अलग अलग शरीर धारण किया है। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারানীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। तो भगवान श्री कृष्ण क्या क्या लिया श्रीमती राधा रानी से? कॉम्प्लेक्शन लिया और भाव, ये दो चीज लिया है। এই শ্লোকটি ছিল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কর্চা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম 14টি শ্লোকের 5ম শ্লোক। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি, রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি, অন্যান্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি, অন্যান্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি। শ্রীমতী রাধারানী এবং শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন, কিন্তু তারা দুইটি পৃথক দেহ ধারণ করেছেন। এভাবেই তারা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন। তাৎপর্য: দুই অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ জড়বাদীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কর্চা থেকে উদ্ধৃত শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উপরোক্ত বর্ণনাটি তাদের তত্ত্বের সার মর্ম, একদম মেন। শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি তত্ত্বের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে গভীর পারমার্থিক উপলব্ধির প্রয়োজন। এক, ভগবান দুই রূপে আনন্দ উপভোগ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান তত্ত্ব আর শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তি তত্ত্ব।
বেদান্ত দর্শন অনুসারে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তারা অভিন্ন। আগুন থেকে যেমন তাপকে করা যায় না, তেমনি শক্তিমান থেকে শক্তিকে পৃথক করা যায় না। यस माताजी। Prabhu, that line, no, one, two word ka, one is enjoying in two. What does it mean, Prabhu? वेर One is enjoying. कहाँ है ये लाइन? ये देखिए प्रभु, फिफ्थ अभी जो आपने कृष्ण शक्तिमान और राधा रानी शक्ति है, हाँ। उसके जो पहले এক ভগবান দুই রূপে আনন্দ উপভোগ করছেন, দুই রূপে একই भगवान। देखिए इसका अनुवाद में आइए। हाँ, भगवान मगर कुछ नहीं लिखा इंग्लिश में लिखा वन इज एंजॉयिंग इन टू। ठीक है, 56 नंबर का अनुवाद में आइए आप, पढ़िए अनुवाद। Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus, they enjoy each other, tasting the mellows of love. अच्छा, ठीक है, आंसर मिल गया। अभी फिर से आपका वो लाइन पढ़िए जो अभी आपने पढ़ा। One is enjoying in two. ठीक है, एक ही है, दोनों अलग अलग हो गया है। राधा रानी कृष्ण का प्रेम आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम राधा रानी का प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। नहीं, पर इसमें लिखा है प्रभु वन इज एंजॉयिंग इन टू। बिकॉज वन था तो कृष्ण ही एक्सपैंडेड इनटू राधा रानी एंड देन एक दूसरे का प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु इज एंजॉयिंग टू, कृष्णा's प्रेम एज वेल एज राधा रानी's प्रेम। एब्सोल्युटली। ओके। জড়া প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরাপ্রকৃতির সবকিছুই অচিন্ত। তাই আপেক্ষিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি ও শক্তিমান তত্ত্বের অভেদত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। मैंने वो सेपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया शक्ति और शक्तिमान का। जैसे आग और आग से ताप यानी उष्णता, वो तो आप सेपरेट नहीं कर सकते ना। वैसे ही ये समझना बहुत डिफिकल्ट है अशोक प्रभु, हाउ टू डिफरेंशिएट आग और ताप। कोई बोलेगा दोनों तो एक ही चीज नहीं, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति हो गया ताप, शक्तिमान कौन है? आग। तो ऐसे कृष्ण है शक्तिमान और भगवान का शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। हाँ माता जी। प्रभु इसका फर्स्ट लाइन थोड़ा समझाइए ना, इसमें इंग्लिश में लिखा है। वह तात्पर्य किसका? इसी पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, तात्पर्य का फर्स्ट लाइन ना। हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं प्रभु अभी। अच्छा, इसी पैराग्राफ का, अच्छा सेकंड पैराग्राफ का इंग्लिश में पढ़िए आप जो देख रहे हैं। Everything in the absolute is inconceivable in relative existence. Relative existence का समझ में नहीं। हाँ, तो इन रिलेशन, तो उसीलिए शक्ति शक्तिमान ये दोनों एक ही है। हाँ, तो कोई भेद नहीं है इसमें। तो ये एब्सोल्यूट, इसको समझ में, इसको अलग करने शक्ति उसीलिए आग और उष्णता का उदाहरण दिया। लोग बोलेंगे दोनों तो एक ही चीज है, गर्म, ये तो आग ही है। नहीं, दे आर डिफरेंट। ओके, दिलीप प्रभु। प्रभु लाइक सन और सनलाइट, ये भी एब्सोल्युटली शक्ति शक्तिमान। अब चिंता मत कीजिएगा अगर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ यही लिखा है। তাই আপেক্ষিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি ও শক্তিমান তত্ত্বের অভেদত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है सत्यवान माता जी। तो अग्नि और उष्मा एक ही है, शक्ति शक्तिमान एक ही है। तो राधा कृष्ण अलग अलग जगह में अलग अलग अप्रकट क्यों हुए थे दोनों? अप्रकट क्यों हुए थे दोनों? अप्रकट या प्रकट क्यों हुए थे दोनों? दोनों एक ही है, एक से दूसरा निकला है। जैसे उष्णता उज्ज्वलता आग से निकला है, सूर्य की किरण सूर्य से निकला है, लेकिन दोनों अभेद है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, वैसे ही श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। अलग अलग लीला किया है दोनों ने, एक दूसरे को आस्वादन किया है दोनों ने, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ना दो शरीर एक प्राण है, तो अलग अलग अप्रकट होते हैं। अलग अलग अप्रकट होते हैं। हाँ, दोनों तो अलग अलग अप्रकट हुए ना, धाम छोड़ के जब गए। अप्रकट हुए, अभी भगवान का अप्रकट लीला के बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान कभी अप्रकट हुए ही नहीं वास्तव में। ठीक है, तो राधा रानी से भी तो अप्रकट हुई थी ना।
हमको कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, राधा रानी का प्रकट लीला के बारे में हमको मालूम नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, জড়া প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরা প্রকৃতির সবকিছুই অচিন্ত। इन रिलेशन टू जरा प्रकृति परा प्रकृति एवरीथिंग इज अचिंत, चिंतन के बाहर। एटलीस्ट जरा प्रकृति तो फिर भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, जरा प्रकृति के आसपास जो चीज देख रहे हैं, बट चिन्मय जगत का चीज को समझना वो अब मैंने अचिंत, इसलिए अचिंत मीन्स इनकंसीवेबल, जिसको कंसीव नहीं कर सकते, जिनको चिंतन लॉजिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो है चिन्मय तत्व। ताई अपेक्षिक अच्छा कुछ कुछ चिन्मय तत्व बताइए आप लोग, उदाहरण दीजिए जो सचमुच चिंतन के बाहर या जरा लॉजिक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई एग्जांपल दिखाइए एंड टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु वो वाला एक अचिंत्य है ना कि जैसे वो ब्राह्मण को आके बोला था कि वो भगवान ने, नारद मुनि ने बोला भगवान क्या कर रहे थे, तो बोले कि वो तो नीडल के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। ओके, वेरी गुड। सुनिए राधिका माता जी। प्रभु जी पर भगवान अपना रूप 16,108 कर ली और सब रूम में अलग 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 अलग, तो ये भी जल्दी से मतलब एब्सोल्युटली वेरी गुड। हाँ, ये तो अचिंत्य है, ये जड़ जगत में होता है क्या? मैं एक अचिंत्य का उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान सब में है और सब भगवान में है, ये भी अचिंत्य है। ये सत्यमा माता जी। प्रभु भगवान जब ब्रह्मा जी जब ग्वाल बाल को चुरा कर ले गए थे तो अपने आप को विस्तार कोई तत्व का उदाहरण दीजिए ना। आप लोग तो लीला का उदाहरण दे रहे हैं, मैं तत्व का उदाहरण दे रहा हूँ। अपने को विस्तार तत्व का उदाहरण दीजिए अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, भगवान की जितनी भी असाधारण लीलाएं हैं, जिनमें पुतनावध, तृणावर्तवध, यो भी है बाल्यावस्था में, तो वो सभी अचिंत्य हैं। हाँ करेक्ट, इतना छोटा बालक कैसे मार सकता है, करेक्ट, वेरी गुड, ऐसे तत्व दीजिए, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। इतना छोटा बालक कैसे इतना लोगों को मार सकता है? गोवर्धन लीला, भगवान गोवर्धन उठा लिए, हाँ, पहाड़ को कैसे उठा सकते, तो वही लीला कैसे कर सकता है इतना छोटा बालक? छोटा बालक क्या, बड़ा बालक भी नहीं कर पाएगा, कोई भी बालक नहीं कर, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, है ना? प्रभु ये लीला में नहीं आता है ये सब जो प्रभु लोग जो बोले। उन्होंने तत्व बोला कि एक बालक इतना ये सब नहीं कर सकता है। ओके, तत्व है ये। उदाहरण में आएगा पुतनावध, बकासुरवध, गोवर्धन उठाना, ठीक है? तो एक बालक के प्रति माने बालक के लिए ये सब असंभव है, कोई व्यक्ति के लिए भी असंभव है। और भगवान इतना ग्वाल बाल में विस्तार किए, वो क्या संभव है? आप पूछ रहे, फिर से शुरू हो गया आपका? आपसे पूछ रही हूँ बस, क्या संभव है? आप खुद से बोलिए ना, संभव है क्या? आपको उत्तर मालूम नहीं है तो ये उदाहरण है, बोलिए। हरे कृष्ण। ये संगिनी माता। हाँ प्रभु, जब ये बचपन में मुख से जो पूरा ब्रह्मांड दिखा था। हाँ, ये उसका ये आप उदाहरण दे रहे हैं, मैंने तत्व दे दिया। तत्व क्या दिया था मैंने? भगवान सब में है और सब भगवान में है, तो भगवान ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड सब भगवान में अंदर है, ठीक है? तो आप उदाहरण दे रहे हो उसका, ब्रह्मांड घाट में जो लीला किया था भगवान ने। ओके, आशा करता हूं समझ में आ रहा है क्या चर्चा चल रहा है। आगे उसीलिए लिखा है तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तित अचिंत भेदाभेद दर्शनेर माध्यमे केवल अप्राकृत जगतेर गूढ़ तत्व हृदयंगम करा जाए। समझ में आया ये सेंटेंस? तो महाप्रभु का अचिंत भेदाभेद तत्व अगर कोई समझ में पाया तो फिर ये भगवान का चिन्मय जगत का जो अलग अलग तत्व है जो एकदम चिंतन के बाहर, वो चीज समझ पाएगा। तो महाप्रभु का अचिंत भेदाभेद तत्व क्या है? यही है कि जीव भगवान से भेद है और अभेद भी। जीव भगवान से गुणात्मक अभेद है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान में जो जो गुण पाया जाता है जीव में वही गुण पाया जाता है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत फर्क है। भगवान क्या है, अनु या विभु? विभु, अनु एकदम छोटा छोटा जीव, तो जीव में थोड़ा थोड़ा ये सब गुण दिखाई देता है।
लेकिन भगवान पूरा एक एक चीज विस्तार एकदम एवरीथिंग। जैसे प्रभु जी, जैसे समुद्र और समुद्र का एक बूंद पानी, दोनों क्वालिटी एक ही है दोनों का, अगर लैब में टेस्ट कराएंगे तो। लेकिन एक बूंद कहाँ और समुद्र कहाँ? প্রকৃত পক্ষে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তিনি নিত্যকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করেন। आनंद वर्धन मान आनंद के वृद्धि बढ़ाना, आरो वृद्धि आरो बढ़ाता है और आनंद देता है। ऐसा नहीं कि जो आनंद दे रहा था वही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, नो। মহাভাগবত ভক্তের কৃপা ব্যতীত নির্বিশেষবাদীরা কখনো এই গুরুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে মগ্ন রেখেছেন বলে তার নাম রাধা। तो राधा नाम का विश्लेषण देखिए, শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে মগ্ন রেখেছেন বলে তার নাম রাধা। আবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত জীবের সেবা নিবেদন করার মাধ্যমে হচ্ছেন তিনি, समस्त जीवन सेवा माध्यम। इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं उसका अर्थ क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, मुझे कृपया आप भगवान की सेवा में नियुक्त कीजिए। यही है ना हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ? हाँ। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी समस्त जीव को, हम लोग जैसे जीव को, बद्ध जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं, नियोजित करते हैं। আবার শ্রীকৃষ্ণ নিকট সমস্ত জীবের সেবা নিবেদন করার মাধ্যমে হচ্ছেন তিনি রাধা। তাই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত সেবক রূপে স্বীকৃতি লাভ করার জন্য শ্রীমতী রাধা রানীর কৃপা প্রার্থনা করেন। उसीलिए वृंदावन के रम रम बोले श्री राधे 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 राधे, हर एक जगह वृंदावन की गली गली बोले श्री राधे राधे, है ना। हर एक चीज राधे राधे बोलता है, क्योंकि भगवान की सेवा में नियोजित कर सकती है सिर्फ श्रीमती राधा रानी। तो एकदम क्या है प्रोड्यूसर। हाँ, हिंदी में कहावत है ना कि बाबू को पटाना है तो, हाँ वैसे ही। तो राधा रानी अगर मान गई, तो राधा रानी अगर मान गया, राधा रानी अगर हम लोग के प्रति प्रसन्न है ना, तो हमारा सोचिए काम हो गया। ऐसे ही कुछ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের অপ্রাকৃত সম্পর্কের সর্বোত্তম তত্ত্ব। लेकिन अभी एट द सेम टाइम ठीक है, राधा रानी को हम लोग पुकारेंगे एक्सेट्रा, लेकिन ऐसे माने ऐसे हम लोग को करना है आचरण व्यवहार जैसे सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो श्रीमती राधा रानी का हम लोग नाम लेंगे भी, और क्योंकि हम लोग का चेतना बहुत निम्न है, हम लोग अपराध में ना फंस गए, अपराध में ना फंस जाए वो भी थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, कॉशियस रखना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी का नाम लेते वक्त, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का लीला समझते वक्त, क्योंकि क्या है हम लोग सुनेंगे पढ़ेंगे वो सब लीला, लेकिन दिमाग में आएगा बॉलीवुड और टॉलीवुड, और दोनों का हम लोग रिलेटिविटी करेंगे। रिलेटिविटी समझ रहे हैं? क्योंकि देखा है इतना दिन हॉलीवुड पिक्चर और बॉलीवुड पिक्चर, अभी सुन रहे हैं भगवान का चिन्मय धाम का व्यापार में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो दोनों आ ही जाएगा, तो उससे बच के रहना है। इसीलिए जैसे आचार्य ने दिया है वैसे ही हम लोग को चलना है, वैसे ही नहीं तो वो हम लोग का वाला थियरी आ जाएगा। जैसे महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो उसी को जप करना है, साक्षात भगवान कर दिया गया है। राधे राधे पुकार सकते ठीक है, लेकिन जाप के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের অপ্রাকৃত সম্পর্কের সর্বোত্তম তত্ত্ব কলিযুগে বদ্ধ জীবের প্রদান করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপ মূলত তার অন্তরঙ্গা লাদিনী শক্তির क्रिया। ठीक है, तो महाप्रभु जो भी कार्यकलाप करते थे उनका लादिनी शक्ति का क्रियाकलाप। पूर्ण तत्व शक्तिमान श्रीकृष्ण হচ্ছেন সচ্চিত ও आनंदमय स्वरूप। भगवान सच्चित आनंद में है। इसका क्या अर्थ है सुचारू गोपी माता जी? सत
चित आनंद, इसका क्या अर्थ है? सत का अर्थ क्या है? सत्य भगवान सत्य है और उनका चित्त आनंदमय है। वाह, भगवान सत्य है, यानी सत्य बात बोलता है, झूठा नहीं बोलता है। सत्य नहीं, हाँ, सत्यवादी युधिष्ठिर जैसा है भगवान। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, सत्यमान है। ओके, सत्य माता जी। सत्य मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, आनंद से परिपूर्ण। हाँ, तो ये हम लोग को जानना चाहिए। सत चित आनंद में, सत माने इटर्नल, अनादिरादि। ओके, चित मतलब पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान, फुल ऑफ नॉलेज भगवान, और आनंद माने आनंद का सागर। ओके, तो पूर्ण तत्व शक्तिमान श्री कृष्ण হচ্ছেন সচ্চিত ও আনন্দময় স্বরূপ। সেই, अभी और एक चीज आप लोग को बता दे रहा हूं, सच्चित आनंद, बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा। सत माने भगवान का ब्रह्म ज्ञान जिनको हो गया, यानी भगवान निराकार रूप में भी है। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, यानी भगवान का परमात्मा का ज्ञान जिनको हो गया, सच्चित। और आनंद जो ये भी समझ लिया, तो वो भगवान का साकार रूप को भी समझ लिया। तो भगवान का जो सच्चित आनंद का ज्ञान है जिनको, उनको भगवान का ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान हो गया। क्लियर है? ओके, সেই একই চিৎ শক্তি প্রথমে সদাংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তা বিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণ জ্ঞানরূপ সম্বিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব, এবং আনন্দাংশে লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপ তত্ত্বের আনন্দদায়িনী শক্তি। এভাবেই ভগবান তার অন্তরঙ্গা শক্তিকে তিনটি अप्राकृत सत्ताएं विस्तार करें। ओके, तो जैसे भगवान का बहिरंग शक्ति माया देवी 3 प्रकार से विस्तारित है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, इन तीनों में फंसाकर लोगों को डांस कराता है ना। वैसे ही भगवान का जो अंतरंगा शक्ति है, चिन्मय शक्ति है, वो भी 3 प्रकार से विस्तारित है। क्या क्या? संधिनी, संवित और लादिनी। संधिनी शक्ति क्या है? वो भगवान का इटर्निटी, यानी नित्य, शाश्वत, वो तत्व बताते हैं। संवित शक्ति क्या है? पुण्य ज्ञान में वो तत्व बताते हैं। और लादिनी शक्ति, यानी जो श्रीमती राधा रानी का स्वरूपिणी है, वो पूर्ण आनंद में ये तत्व बताते हैं। संवित से याद आ गया, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, मोहनगुन प्रभु का पोता का नाम दिया है संवित। हरि हरि बोल। यस प्रभु जी, हम अभी यही सोच रहे थे। प्रभु पोता का नहीं है, प्रभु नाती का है। नाती, अच्छा, वही मेरा हमेशा मिक्स हो जाते हैं। ओके प्रभु जी, एक बार और बोलिए इसको, तीनों शक्ति के बारे में। हाँ, जैसे भगवान का बहिरंगा शक्ति किस तरह से प्रकाशित है। सोचिए, भगवान का बहिरंगा शक्ति हम लोग को माया में फंसा के रखते, किस तरह से? ये 3 प्रकार से, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। हम लोग उसी में सब कर रहे हैं ना। सोचिए, अभी प्रयास कर रहे हैं सतगुण में थोड़ा शास्त्र अध्ययन करने के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। थोड़ा बाद रजगुण में आ जाएंगे, टका 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 कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। हाँ, जितना दिन जाएगा उतना पैसा 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 चाहिए, पैसा। ये सब रजगुण का लक्षण है। और शाम को ऐसे दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है, शाम को थक जाते हैं, लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा सोना चाहिए, अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, वो तमोगुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जस्ट उदाहरण दिया मैंने। माया देवी का ये 3 अस्त्र है, ये 3 बहिरंगा शक्ति का प्रकाश है, इस तरह से जीवों को फंसा के रखता है। तो वैसे ही चित जगत में भगवान का अंतरंग शक्ति भगवान के शुद्ध भक्त कैसे फंसा के रखता है? ये सच्चित आनंद, संधिनी, संवित और लादनी शक्ति के रूप से व्यक्ति को इटर्निटी, भगवान शाश्वत है, भगवान नित्य है, ये कॉन्सेप्ट
देता है। ये चिन्मय जगत नित्य है, भगवान नित्य है, शाश्वत है, जीव भी नित्य है, और भगवान पुण्य ज्ञान है, फुल ऑफ नॉलेज। ये बताना तो जरूरी है ना, नहीं तो भगवान के ऊपर वो अटूट विश्वास, श्रद्धा, वो तो बोलबो, इट मस्ट बी मेंटेन्ड विद इन द डिवोटीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वैसे ही भगवान पुण्य आनंदमय है, और ये जो आध्यात्मिक जगत है ये भी पुण्य आनंदमय है। तो ऐसे, और हम लोग जो भी हैं जीव, वो भी सच्चिदानंद में है, क्योंकि हम लोग भी भगवान के अंश है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, थ्री एस्पेक्ट्स या थ्री तत्वस जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। ठीक जिस तरह ये तीन गुण से जड़ जगत के हम लोग जैसे जड़ जीव को कंट्रोल किया जाता है माया देवी द्वारा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ओके, मैं फिर से ये लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ रहा हूं। সেই একই চিৎ শক্তি यानी স্পিরিচুয়াল শক্তি, जो अंतरंग शक्ति, প্রথমে সদাংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তা বিস্তারিণী। সত্তা বিস্তারিত মানে इटर्निटी, भगवान का इटर्निटी, शाश्वत। चिदांश पुण्य ज्ञान रूपे, पुण्य ज्ञान रूपे मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, यानी चित्त, उसको संवित शक्ति बोला गया है। अर्थात श्री कृष्णेर स्वरूप तत्व এবং আনন্দাংশে লাদিনী, অর্থাৎ সেই স্বরূপ তত্ত্বের आनंदायिनी शक्ति। तो इस प्रकार से तीन शक्ति रूप में विस्तार किया है भगवान का अंतरंग शक्ति। थ्री ways it has manifested in the spiritual world. कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु संवित और क्या बोले, अलादिनी और एक और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। संधिनी, संवित और लादिनी। ओके, संवित को बीच में रखिएगा, ठीक है। मोहन गोविंद प्रभु का पोता एकदम बीच में, सेंटर में है, एकदम हम लोग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ऐसे नाती सॉरी, ठीक है। संवित बीच में, और स्टार्टिंग में संधिनी, और लास्ट में तो लादिनी, अल्लादिनी यानी आनंदमय, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर। हाँ बोलिए कविता माता जी। भूलेंगे नहीं हम लोग, आप नहीं भूलेंगे। संवित मतलब मिडल भी हो गया, एम स्टैंड फॉर मिडल। प्रभु ये दोनों सद चित आनंद से ही कोइंसाइड करते हैं, तो सेम यस। हाँ, तो इन शक्तियों का नाम दिया है संधिनी, संवित और लादिनी। भगवान का अंतरंग शक्ति, इट हैज फर्दर बीन क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। ओके, इट्स लाइक दैट। जैसे भगवान का बहिरंग शक्ति तीन तरह से प्रकाश हो रहा है, 3 गुणों से प्रकाशित हो रहा है एक्चुअली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सुमना गौरंगी माता जी, मैं इसीलिए बहिरंग शक्ति का उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, सो दैट अंतरंग शक्ति समझने में आसान हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे अलादिनी शक्ति राधा रानी, संवित शक्ति बलराम जी के जो वो सब, और संधिनी का क्या है प्रभु जी? है कुछ अनिरुद्ध, आई डोंट रिमेम्बर, याद नहीं आ रहा है। सही बोला आपने, कोई स्वरूपिनी है। जैसे लादिनी शक्ति का स्वरूपिनी श्रीमती राधा रानी, संवित शक्ति का स्वरूप बलराम जी, इसलिए बलराम जी आगे फुल ऑफ नॉलेज। ओके, हाँ हमको याद नहीं आ रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं याद नहीं आ रहा है, उल्टा पुल्टा बोल देंगे, इससे अच्छा याद नहीं आ रहा है। সেই একই চিৎ শক্তি পরম, আচ্ছা ये हो गया। এইভাবে ভগবান তার অন্তরঙ্গা শক্তি 3 অপ্রাকৃত সত্তায় বিস্তার করেন। लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए कोई हिंदी में, इस प्रकार से। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य भागों में प्रदर्शित करते हैं। बस, दिस इज द 3 बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल पोटेंसी। अगला श्लोक 57। সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই, সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই, রস আস্বাদিতে দোহে হইলা এক ঠাই। রস আস্বাদিতে দোহে হইলা এক ঠাই। রস আস্বাদন করার জন্য এখন তারা দুজন এক দেহ ধারণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ইথে লাগি আগে করি তারও বিবরণ,
ইথি লাগিয়ে আগে করি তার বিবরণ। যাহা হইতে হয় গৌর রেরো না, যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন। যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন। তাই আমি প্রথমে শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করব, যার মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বর্ণন করা হবে। রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार। देखिए ये 58 नंबर श्लोक में बोला, पहले मैं श्रीमती राधा रानी का और उसके बाद श्री कृष्ण का तत्व का बारे में डिस्कस करेंगे। इससे चैतन्य महाप्रभु का बारे में समझने में हम लोग को आसान होगा। तो अभी पहले श्रीमती राधा रानी का बारे में बताइए कविराज गोस्वामी। राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार। स्वरूप शक्ति लादिनी नामो जाहार। स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जाहार। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার, তিনি লাদিনী নামক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ब्रह्म संहिता जब पढ़ रही थी तो उसमें एक थोड़ा आया था ये संबित शक्ति, अलादिनी शक्ति और संगिनी शक्ति। इसमें मैंने नोट बनाया था प्रभु जी कि संबित शक्ति जो है ज्ञान को जानना, रिलेशनशिप विद गॉड, हाँ, और अलादिनी शक्ति तो आनंद प्राप्त कराते हैं, और आध्यात्मिक संगिनी शक्ति जो है आध्यात्मिक जगत के वैरायटीज को बैलेंस कराती है। तो वैरायटीज अच्छा, इंग्लिश को इटर्नल बोलता है। इटर्नल एकदम सही। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लिखे थे प्रभु जी, नोट्स बनाए थे, तो ये मुझे आज अच्छा लगा, याद आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी ये लादिनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी जिनका प्रतीक है, वो लादिनी शक्ति के बारे में थोड़ा आएगा। अगला श्लोक 60। लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन। आह्लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन। लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। সেই লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করায় এবং তার ভক্তদের পোষণ করে। ओके, दीज आर द टू एक्टिविटीज ऑफ लादिनी शक्ति। ध्यान से सुनिए, भक्तों पोषण करता है और भगवान को आनंद आस्वादन कराता है। वेरी इंपॉर्टेंट तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी तार प्रीति संदर्भे मेरे पास है বিস্তারিত ভাবে লাদিনী শক্তির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে বেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়। সমীপবর্তী মানে নিকট, ক্লোজ। ওকে, ভক্তির মাধ্যমে কেবল ভগবত ভক্ত সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারে। हो सकता है भगवान नहीं है सामने, लेकिन दर्शन तो कर सकता है। ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবান আকৃষ্ট হন এবং তাই বৈদিক জ্ঞানের সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান। ভগবত ভক্তিতে আকর্ষণীয় এমন কি আছে যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তা এমন ভাবে গ্রহণ করেন? क्या है ভক্তি में? তার এই সেবার ধরনই বা কি রকম? তার উত্তরে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং সম্পূর্ণ। মায়া বা অজ্ঞান তাকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না। অতএব যে শক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে বশ করে তা অবশ্যই পরাশক্তি। ये तो कंफर्म है ना, जो भगवान को वश कर सकता है वो शक्ति तो कोई चीज माने कोई साधारण शक्ति नहीं होगा ना, स्पेशल तो होना ही चाहिए। সেই শক্তি কখনোই জড়া প্রকৃতি সম্ভূত হতে পারে না। तो ये जो भगवान यहाँ के चोरी वोरी करता है, माखन चोरी करता है, तो ये क्या महामाया से होता है या योग माया? कौन सा, अंतरंग शक्ति या बहिरंग शक्ति से होता है? अंतरंग शक्ति से। ऑब्वियसली अंतरंग शक्ति या पराशक्ति के प्रभाव से होता है। भगवान थोड़ी माया में फंस जाएंगे और चोरी करेंगे। परमेश्वर भगवान जे आनंद उपभोग करें ता निर्विशेषवादीरा ब्रह्मांडेर
হ্যাঁ, ব্রহ্মাণ্ডের মতো হেয় আনন্দ নয়। ब्रह्मानंद लिखा हुआ है। ব্রহ্মানন্দের মতো, সরি। তার আগে আছে নির্বিশেষবাদিকা। হ্যাঁ, নির্বিশেষ, সরি, হ্যাঁ সেটাই তো পড়ছি। পরমেশ্বর ভগবান যে আনন্দ উপভোগ করেন তা নির্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মানন্দের মতো हेय आनंद है। तो निर्विशेषवादी लोग, उन लोग का परिपूर्णता कब होता है? जब उन लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, है ना कविता माता जी? दैट इज देयर एम ऑफ लाइफ। और ब्रह्मानंद में विलीन होकर उन लोगों को क्या सुख मिलता है? ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर उन लोगों को ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। उधर निष्क्रिय होकर डॉट बन के चुपचाप बैठा रहता है, ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। तो कहा जाता है ब्रह्मानंद का सुख इस जड़ जगत के काम वासना सुख से कोटि कोटि टाइम्स है ब्रह्मानंद का सुख। ओके, तो यहां बोला जा रहा है कि भगवान का जो आनंद उपभोग करें परमेश्वर के भगवान के, অতএব যে শক্তি परमेश्वर भगवान के বশ করে তা অবশ্যই পরাশক্তি। तो श्रीमती राधा रानी जो आनंद उपभोग करते हैं वो ब्रह्मानंद सुख से कोटि कोटि ज्यादा है। ওকে, ভগবত শক্তি হচ্ছে দুইটি সত্তার মধ্যে প্রেমের বিনিময় এবং তাই তা একক আত্মার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। इसीलिए भगवान अपने आप को विस्तार करता है। He needs some, इसीलिए राधा रानी के लिए विस्तार करता है। अकेला खुद नहीं कर सकता ये चीज। निर्विशेष उपलब्धि आनंद বা ব্রহ্মানন্দ ভগবত ভক্তির সমপর্যায়ভুক্ত নয়। इट इज नॉट सेम। समझ में आया? ये कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है इस तात्पर्य में? अब बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे क्या है, भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। हाँ, ये कैसे होता है? भक्ति भगवान और भक्त के बीच में होता है, प्रेमिक और प्रेमिका के बीच में होता है। हाँ, यश माता और पुत्र के बीच में होता है जैसे वात्सल्य में। दास और प्रभु के बीच में होता है जैसे जैसे दास्य में। सखा सखा में होता है। दो जन तो चाहिए मिनिमम ना। हाँ प्रभु जी। आगे तात्पर्य, परमेश्वर भगवाনের অন্তরঙ্গা শক্তিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হ্যাঁ মাতাজি। ওই যে ঝগড়া করতে হলো দুজনই লাগছে, একা একা হবে। ओके, আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকে। 3 पार्ट में। लादिनी বা आनंददायिनी शक्ति, संधिनी বা सत्ता विस्तारिणी। जैसे इंदिरा सखी माता जी बता रहे थे ना, विचित्र जिस जगत में बहुत वैचित्रता है ऐसे बता रहे थे ना, कुछ वेरीगेटेडनेस, बहुत वैरायटीज। तो वैसे ही देखिए यहाँ बोल रहा है संधिनी माने, संधिनी का क्या दिया है? सत्ता विस्तारिणी, ভ্যারিগেটেডনেস শক্তি এবং সম্বিত বা পূর্ণ জ্ঞানময় শক্তি। বিষ্ণু পুরাণে ভগবানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ভগবান আপনি হচ্ছেন সবকিছুর আশ্রয়। লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত এই শক্তিক্রয় এক স্বরূপ শক্তি রূপে আপনাতেই বিরাজ করে, ऐसे विष्णु पुराण में बोला गया है। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণ যা থেকে সুখ ও দুঃখ উদ্ভব হয় তা আপনাতে অবস্থান করে না, কেননা আপনার মধ্যে কোনো জড়া গুণ নেই। तो ये सब बहिरंग शक्ति का प्रकाश है। ये सुमना गोरंगी माता जी। प्रभु जी संधिनी का क्या पढ़े? हिंदी में लिखा हुआ है अस्तित्व की शक्ति। अच्छा, बंगाली में लिखा सत्ता विस्तारिणी, वेरीगेटेडनेस। जैसे चित जगत में इतना वैरायटी है, विभिन्न रूपों में। और संधिनी का ये भी अर्थ है इटर्निटी, यानी शाश्वत, वो भी है। वो तो नित्य हम लोग समझ गए, लेकिन जैसे संबित का जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बलराम जी जितने भी भगवान की सेवा में लगते हैं वो संबित है। आएगा, कौन किसका स्वरूप है वो आएगा, ये भी आएगा। संबित का स्वरूप है बलराम जी, आएगा आगे। तब हम लोग देख लेंगे शक्ति का भी कौन है। हाँ, ये तब लिखा हुआ ना कि अस्तित्व की शक्ति, तो समझ में नहीं आ रहा। इटर्निटी, वही तो अस्तित्व माने शाश्वत, इटर्निटी। संधिनी का बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ प्रभु। हाँ, तो संधिनी मतलब इटर्निटी माने अनादिरादि।
इसीलिए संधिनी का क्या बोला आपने, वर्ड यूज किया गया है? नित्य, नित्य, शाश्वत, इटर्निटी, अनादिरादि। ओके, यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन है, इसका समझ में अस्तित्व किसका अस्तित्व प्रभु, भगवान इस का, जगत का, भगवान का, भक्तों का। ठीक। ओके, इंदिरा सखी माता जी। प्रभु जी ये लाइन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। भक्ति दो के बीच आदान प्रदान होता है, ये तो समझ में आ गया। अतवे यह कभी भी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतवे आत्म साक्षात्कार के आनंद, भक्ति के संकुल। अतएव ये कभी भी मनुष्य के भीतर, क्या बोलिए इसमें लाइन है ना प्रभु जी, अथवा यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। आदान प्रदान की प्रक्रिया यहाँ तक लेते हैं। अतएव ये कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं, अपने आप को भक्ति, अपने आप को भजन कीर्तन नहीं कर सकता है, किसी को चाहिए। आदान प्रदान की प्रक्रिया अंदर आगे लिखा गया था कि भक्ति दो व्यक्ति की मिनिमम, भक्ति भगवान, कोई एक्सटर्नल व्यक्ति तो चाहिए। उसीलिए भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप से भक्ति नहीं कर सकता ना, तो उनको क्या किया, उन्होंने अपने आप को विस्तार किया श्रीमती राधा रानी में। वैसे जीव अपने आप से तो भजन कीर्तन प्रेम का विनिमय नहीं कर सकता है ना, किसी को चाहिए। प्रभु फिर आत्म साक्षात्कार के आनंद, ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। तो आनंद और ब्रह्मानंद की, अभी आप अलग चीज पढ़ रहे हैं। अभी निर्विशेषवादी के लिए बोल रहे हैं कि उन लोग का जो सुख है ब्रह्मानंद सुख, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाने के बाद जो सुख मिलता है, अच्छा, वो भक्ति से तुलना नहीं कर सकते आप। अच्छा, ये निर्विशेषवादियों का है। अच्छा, ठीक है। हाँ, सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी वो भक्ति के मतलब तो सेवा हो गया ना, सेवा का जब कॉन्सेप्ट आता है तो दो व्यक्ति होने चाहिए, तभी तो हम लोग भक्ति कर सकेंगे ना, तभी आदान प्रदान भी होगा। यू कैनॉट सर्व योर ओन सेल्फ। अगर उसीलिए मैं बोला था ना, सोचिए ब्रह्मांड में सबको हटा दिया और आपको अकेला रख दिया और बोला जाइए आप सब पूरा ब्रह्मांड का मालिक, आप बोलेंगे बाप रे चाहिए नहीं ऐसे ब्रह्मांड, अकेला क्या उपभोग करेंगे, हाउ विल आई एंजॉय। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। बबीता माता जी थोड़ा सा नीचे कीजिए। प्रभु जी ये जो यहाँ पे है ना, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति एवं संवित शक्ति का या ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान शक्ति भी होगा, संवित शक्ति। हाँ, संवित माने ज्ञान में, पुण्य ज्ञान में। तो प्रभु यहाँ तो इसके आगे आया था कि भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है, वो संधिनी का बारे में बोल रहे हैं आप। विस्तार वाला वो संधिनी है, ज्ञानमय वाला संवित है माता जी। प्रभु यहाँ तो फिर इसके ऊपर में तो लिखा है कि संधिनी का मतलब अस्तित्व की शक्ति। हाँ, अस्तित्व यानी संवित बने हुआ है भगवान के विस्तार, दिव्य रूपों का विस्तार। हाँ, ज्ञान में दिव्य। हाँ, तो फिर यहाँ पे प्रभु संधिनी में ज्ञान कहाँ से आ गया? संवित, हाँ, संवित में पूरा पुण्य ज्ञान में है। प्रभु नहीं समझ में आ रहा है, दोनों तो मिल जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक देता हूँ फिर। अच्छा, एक एक करके लिखते हैं फिर। प्रभु बलराम जी भी तो नाम आ रहा है ना इसमें। उसको मत लाइए, अभी तक प्रभुपाद नहीं लाया, आप लोग घोड़ा डिंगे घास कच्चे। प्रभुपाद ने अभी बोला कुछ बलराम जी के बारे में? आप तो बोले ना पहले। मैंने नहीं बोला, सुमना गौरंगी माता जी ने बोला। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले सत, SAT, म्यूट करिए, वेदगामिनी राधा रानी माता जी म्यूट करिए, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। अरे म्यूट करिए। सत, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सत के बारे में देखेंगे। मैं चैट बॉक्स में सत लिखा। ओके, सत का अर्थ क्या है? इटर्निटी, इटर्निटी यानी नित्य, यानी शाश्वत। ठीक है, और क्या दिया है? ये सत का क्या है? कौन सा शक्ति है? भगवान का अंतरंग शक्ति का कौन सा प्रकाश है? संधिनी शक्ति, संधिनी। अभी तक क्लियर है? ये सब एक ही है। चैट बॉक्स दिख रहा है? सत, अशोक प्रभु देखिए अच्छा से। सत, इटर्निटी, इटर्निटी माने शाश्वत, नित्य, शाश्वत, संधिनी, सब एक जैसा है। ठीक है, करुणा राधे माता, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ओके, प्रभु जी, यू आर टॉकिंग अबाउट सत। हाँ, ओके, ठीक है, अभी हम चित्त के बारे में बोलेंगे। अच्छा,
मेरा ये बुक में लिखा है, ये इसका हिंदी क्या लिखा है हम जानना चाहते थे। लादिनी एकदम फर्स्ट सेंटेंस इसी पैराग्राफ का, लादिनी बा आनंददायिनी शक्ति, ठीक है वो आएंगे, संधिनी बा सत्ता विस्तारिणी, इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है? अस्तित्व की शक्ति, अस्तित्व दिया है ना, तो इसमें अस्तित्व भी लिखते हैं। अच्छा, यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी, इसमें अभी तक कोई कुछ क्वेश्चन है संधिनी में? नहीं प्रभु जी, अस्तित्व समझ में आ रहा। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा में आते हैं। अभी हम जो भी लिखेंगे दूसरा के लिए लिखेंगे। सेकंड लिख देते पहले। सेकंड शक्ति क्या है? संवित। संवित के बारे में और क्या क्या लिखेंगे? पुण्य ज्ञान में। म्यूट करिए, म्यूट। आवाज क्यों आ रहा है? कहाँ हैं आप? प्रभु घर पे ही। विनीता माता जी फैक्ट्री में लग रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है लग रहा है, इतना फुश करके आवाज आ रहा है। रोड पे वो रास्ता का आवाज होता है, गाड़ी का, ये सब का। अच्छा, फुल ऑफ नॉलेज, KNOWLEDGE। ठीक है, हम अभी संवित के बारे में लिख रहे हैं। फुल ऑफ नॉलेज, पुण्य ज्ञान में। तो वो सत के बाद चित्त आएगा ना? हाँ, तो वही तो लिखा मैंने। तो ये चित्त लिखे तो? हाँ, क्या? जैसे आप सत लिखे ना, तो अब हम लोग चित्त लिखे। हाँ, मैं उसीलिए हाँ चित्त लिखा, उसीलिए सेकंड वाला लिखा मैंने। चैट बॉक्स में सेकंड लिखा, संवित शक्ति, फुल ऑफ नॉलेज, चित्त। ठीक है, पुण्य ज्ञान में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? पुण्य ज्ञान में। और कुछ दिया हुआ है हिंदी में चित्त के लिए? नहीं, और नहीं है। करुणा राधे माता जी बोलिए। अरे अनम्यूट करिए। ओके, अभी हम लोग प्रभु ये चित्त आप संधिनी के बारे में बोल रहे हैं ना अभी? अरे मैं संवित लिखा, बीच वाला भूल गया। मोहन गोविंद प्रभु का नाती न पोता। अच्छा, संवित। ओके ओके हाँ। ओके, ठीक है, क्लियर है। चित्त आता है, वो चित्त के अंदर आता है। हाँ, संवित इस चित्त। ओके हाँ, ओके प्रभु, क्लियर है ना? अभी इंग्लिश में कॉग्निटिव पोटेंसी लिखा हो, कॉग्निटिव पोटेंसी। ओके, फुल ऑफ नॉलेज, Mataji, cognitive means understanding, knowing, knowledge. नॉलेज। ओके, अभी थर्ड वाला में आ रहे हैं हम। थर्ड क्या है? लादिनी, DINI। ठीक है, श्रीमती राधा रानी प्रतीक है। अभी नाम अभी तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, तो इसीलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, ये क्या? आनंदमय। और क्या लिख सकते हैं? और कुछ दिया है लादिनी के लिए? ब्लिसफुल बोलता है इंग्लिश में, ब्लिस। अंतरंगा शक्ति भी दिया हुआ है। नहीं। लादिनी अंतरंगा का एक पार्ट है। लादिनी इज वन ऑफ देम, तीनों में से। ठीक है, लादिनी बोलिए। भगवान का आनंदमयता का साकार रूप है। हाँ, या ओके। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल जय जय श्री कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। जय